लद्दाख जाना है बाइक पे, बुलेट लेके लद्दाख जाना है। इंस्टाग्राम पे जो चीज़ दिखता है वो सेम चीज़ रियल लाइफ में नहीं है सर। बाकी सर आप जितना रिस्पेक्ट दोगे अपना बाइक को उतना आपको मिलेगा। बाइक का बोलते मेंटेनेंस बढ़ेगा तभी बढ़ता है जब आप उसका केयर नहीं करो। हमने शुरू से राइडिंग गेयर्स कंपलसरी करके रखे थे, बहुत कम लोग आते थे, 5, 7, 10, घर में कभी बाइक अलाउड नहीं था। लीजिए पूरा इंडिया में क्लासिक इज द ब्रेड एंड बटर फॉर रॉयल एनफील्ड। गाड़ी को चलाएंगे यू विल कम टू नो कि what you are feeling comfortable, not what others will say। नहीं भाई वो तो मेरे को क्लासिक में देख के बोलेगा कि भाई तू सस्ता गाड़ी ले लिया या हंटर ले लिया। हम बोले भाई अगर मैं कंफर्टेबल हूँ हंटर पे या गरिल्ला पे मैं वही लूंगा। बाइकिंग ब्रदरहुड बोलते हैं, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट बिकॉज यही मेरे साथ थे, देयर वाज नो वन एल्स। मेरी फैमिली है लेकिन राइडिंग के टाइम तो फैमिली भी नहीं रहती, दीज आर माई फैमिली। योर माइंडसेट डज नॉट मैच, आप राइड नहीं करेंगे मेरे साथ। ये लॉन्ग जर्नी, द बेस्ट फ्रेंड्स आर मेड ऑन। Hello Harshit, how are you? आई एम फाइन। So I have been willing to call a rider to this podcast for so long because I am a rider. I love to ride. So tell me about you. When did this journey start? This journey actually, it is totally, as I would say, a aspirational journey. It all started, like I said, I would like to say 1991. It was the first G2 1969 model, which I saw in my Guruji's place in the ashram. He still owns it and he still rides it. Actually, looking at others, I tried to start the vehicle. I got hit on my chin when I tried to kick due to the kickback. Since that day, it has been an aspiration that इस बाइक को मैं टेम करूँगा. I am going to ride this bike, and the same bike, I am say 39 today. I have rode it multiple times. That memory still brings that शौक से करना है. I want to do something, और वो भी रॉयल एनफील्ड के साथ शौक से. This is or where it started. My journey, I wanted to get into this long earlier, but due to some challenges, I could not. But finally, in 2022, when I got a chance and a call from Ari, that was when it all started. अब मेरे को लगा कि भाई आफ्टर 3 decades कुछ सपना पूरा होगा, and I'm gonna work like that. What was your very first Royal Enfield bike that you rode? My very first was Guruji's bike only, 1969 G2. But after that, I tried my hands on. घर में कभी बाइक अलाउड नहीं था. घर में, दैट्स आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक, घर में कभी बाइक अलाउड नहीं था. आफ्टर आई गॉट दिस डीलरशिप, अभी तो सब बाइक्स हैं, काम भी वही है. तो आई हैड रिडन दैट मोटरसाइकिल फर्स्ट, बट नाउ आई एम राइडिंग, देयर आर ऑलमोस्ट 15 मॉडल्स. अब सभी टेस्ट राइड हैं, सभी मेरे पास हैं. तो अब हर राइड में कोई अलग बाइक हो जाता है, बट देयर इज़ अ फेवरेट. Classic is the best. That will always be a charm. And first bike जो हमने ओन किया था, क्योंकि घर में अलाउ नहीं था तो डीलरशिप के वजह से, हंटर. Hunter. Lovely. So coming to your dealership and the local riding culture that you have been promoting recently, what's the story behind setting up that? All started actually me and my father. My brother was also there, but he's actually we always wanted to, my father always taught me to build relations. He told he always focuses, even now he tells everyone कि पैसा is important for life but it is not everything. पैसा आएगा जाएगा but relation एक रहेगा तो that will stay till the end. तो हमने ये सोचा कि there was अब एस्पिरेशन था. पापा ने बोला कि घर में तो अलाउड नहीं है, बट ओके वील डू इट एंड इट्स योर एस्पिरेशन, आई वोंट स्टॉप यू. एंड दैट वाज द थिंग वेयर इट ऑल स्टार्टेड. वी वांटेड टू बिल्ड, माने गिव proper services to customers, and we were seeing there was a void in the market, building relations with customers. और अभी मैं तो आपको इतना बोलूँगा, ये जो हमने 3-4 साल पहले सोचा था कि भाई रिलेशन बिल्ड करना है,
वो अभी दिख रहा है बिकॉज आई डोंट नीड टू, इफ आई एम नॉट इन द ऑफिस, इफ आई एम आउट समवेयर, देर आर पीपल फ्रॉम द राइडिंग ग्रुप, they have become like a family member, not a riding group. It's actually, the name is Jai Baba Tribe. It has become more like a family. एक कॉल कि सर मैं नहीं हूँ, हाँ सर मैं चला जाता हूँ, because it is like that, and that relation is what working out. Because people might not have visited my showroom, लेकिन around यहाँ आसपास में सबको पता है कि भाई there is Jai Baba, and because we get bikes, माने एक चीज़ के लिए भी हम फेमस है, राइड्स के लिए, एंड जो बड़े सीसी के सिंगल सिलेंडर बाइक्स हैं वो सब भी माने सिंगुलरली हमारे पास स्पेशली आते हैं कि कभी भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, सर्विस कराना है. आज पीपल आर कमिंग फ्रॉम 100 किलोमीटर्स ऑल्सो, 100-200 ऑल्सो. अभी एक कस्टमर हैं, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ. नवरंगपुर से बाइक लेके आएंगे या बाइक छोड़ के जाएंगे, पीपली के हैं लेकिन बाइक, हर्षित जी सर्विस कराना है, मैं ला रहा हूँ सर, आप लाइए. मैंने सर दैट इज़ रिलेशनशिप वी हैव बिल्ड, दैट वाज व्हाट द एस्पिरेशन वाज सिंस द बिगनिंग, कि भाई हमें कस्टमर को वो देना है जो वो सोच भी नहीं सके. So I am bit curious. Why wasn't bikes allowed in your house? You have such a big passion for bikes. सर एक्चुअली कभी कभी व्हाट हैपन्स कि है मम्मी लोग है घर पे, तो कभी कुछ हुआ होगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन नहीं भाई वी आर नॉट अलाउड. क्योंकि देखिए आए दिन आजकल क्या है कि डिसिप्लिन एक चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोग भी हैं जो डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं. उसके लिए क्या है कि सामने वाले कोई प्रॉब्लम है, रोड पे रहने वाले को प्रॉब्लम, तो वही सब देख के. और इन दिनों क्या है कि सोशल मीडिया, उस टाइम तो नहीं था, लेकिन क्या है इन दिनों भी सोशल मीडिया में इतना तरह के, मैं ये नहीं बोलूँगा सब जेन्युइन है, कुछ फेक भी है, तो वो सबको देख के क्या है, आज सर मेरे और मेरे पापा के पीछे आई वुड से देयर आर 60 पीपल वर्किंग, लेकिन इनडायरेक्टली देयर आर 250 पीपल, क्योंकि हर एक हाउस होल्ड में 4-5 जन हैं, कुछ के तो 15 भी हैं, तो वी नीड टू लीड देम. अगर आज मैं उनके बारे में नहीं सोचूंगा एंड आई एम ऑलवेज ऑन द रोड, तो क्या है कि सर दैट वुड बी सेल्फिश. आज मेरे को उनको ही लेके चलना, बिकॉज दे आर माई एवरीथिंग, दे हैव सपोर्टेड मी टू ब्रिंग दिस चाइल्ड जय बाबा, जो हमने शुरू 0 से स्टार्ट किया. इट इज़ अ मिशन और विजन भी है, तो उनका भी एक विजन है कि भाई आज सर हैं, हमारा सपोर्ट और सर का सपोर्ट रह के ही हम ये किए हैं. How has the local Royal Enfield rider community evolved over last 3 to 5 years, you will say? Sir, our community, specifically talking about Jai Baba and others over here, it has evolved a lot because I have been seeing since last 3 years almost. जुलाई 2023 में हमने फर्स्ट राइड किया था, ग्रुप बना था 2023 में अप्रैल मई में. इसमें सर क्या है कि हेलमेट्स बिकते थे मार्केट में, लेकिन नहीं गेयर्स, आप देखते थे गेयर्स नहीं था. सर गेयर्स में छोटा छोटा चीज़ भी रहता है. इट इज़ एक्चुअली क्या है कि डिसिप्लिन. सबसे पहले तो सर क्या है, माइंडसेट, एंड्योरेंस एंड माइंडसेट. आज ये नहीं कि भाई आज सबको, आप जिनको भी देखेंगे लद्दाख जाना है बाइक पे, बुलेट लेके लद्दाख जाना है, लेकिन सर दैट इज़ द थिंग कि जाना तो है भाई, इट इज़ नॉट, माने हम एक चीज़ बोलते हैं हर को कि सर इंस्टाग्राम पे जो चीज़ दिखता है वो सेम चीज़ रियल लाइफ में नहीं है सर, बिकॉज कुछ ना कुछ फिल्टर्स उसमें लगे हुए हैं. तो दैट इज़ नॉट इट. माइंडसेट सर आज 1 किलोमीटर जाने के लिए भी चाहिए. यू नीड दैट एंड्योरेंस. आज इतनी गर्मी में लोग बाइक चला, सर इट इज़ नॉट अबाउट कम्यूटिंग, इट इज़ एक्चुअली अबाउट राइडिंग, नॉट रेसिंग ऑल्सो. तो सर क्या है कि डिसिप्लिन, हमने शुरू से राइडिंग गेयर्स कंपलसरी करके रखे थे. बहुत कम लोग आते थे, 5, 7, 10 बोलते थे सर बहुत कॉस्टली है. हमने उसको प्रमोट किया. हम बोले सर हम प्रमोट करेंगे, हम बेचेंगे नहीं, आप खरीद लो, जो हमसे हुआ आप खाली खरीद के पहनो उसको. एक बार आप पहनोगे तब आपको पता चलेगा कि सर व्हाट वी आर फीलिंग. हम 10 किलोमीटर भी जाएंगे तो हम उसको पहन के जाएंगे. जर्सी में देख रहे हैं उसमें भी शायद लगा हुआ है. तो क्या है कि ऐसा हो गया कि भाई घर से निकलना है, चाहे बाइक पे चाहे किसी में, यू आर हैविंग आर्मर. तो सर क्या है कि डिसिप्लिन बहुत चेंज हुआ. अभी जितने लोग हैं
मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ओन इट. वी अलाउ फर्स्ट टाइमर्स. वो क्या है कि पीयर प्रेशर में भी आके ले लेते हैं. वो देखते हैं कि हमने जो जो एग्जाम्पल दिया अपने एक्सीडेंट्स का, अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, तो क्या है कि उसमें बहुत इवॉल्व हुआ है, क्योंकि गेयर्स आर द मेन थिंग. और बाकी सर आप जितना रिस्पेक्ट दोगे अपना बाइक को उतना आपको मिलेगा, क्योंकि आप अब्यूज़ करोगे, इवन दे आर मशीन्स और वो ह्यूमन मेड ही है, तो क्या है कि दैट कभी पे ऑफ नहीं करता है अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे. और सर इवॉल्व हुआ है, डिसिप्लिन हुआ है, गेयर्स हुआ है. Which Royal Enfield model would you say is very popular here, especially in Odisha or Bhubaneswar? सर उड़ीसा, भुवनेश्वर, चाहे आप बोल लीजिए पूरा इंडिया में, क्लासिक इज़ द ब्रेड एंड बटर फॉर रॉयल एनफील्ड. क्लासिक इज़ अ बाइक जिसमें नो नॉनसेंस, नो कंप्लेंट्स. मैंने ऐसा बाइक बनाया है. अभी भी फिर एक कस्टमर परसों मेरे को बोल रहे थे कि सर मीटियोर चाहिए, अभी गाड़ियाँ कुछ शॉर्टेज में है, मीटियोर चाहिए. सब बता दिया कि सर इसका ये बेनिफिट है. कुछ वेब कॉल, कुछ हमारे टीम की लड़कियां बैठी थी, सुन लिए सर भी सुन रहे हैं, एसएम भी सुन रहे हैं कि आधे घंटे से कि सर ने सब बेनिफिट बता दिया. बोले सर गाड़ी तो बुकिंग पे आएगी, 25 दिन लगेंगे. ठीक है. वो बोले कि मैं बात करके आ रहा हूँ. हम बोले सर 25 दिन लगेंगे. वो 15 मिनट बाद आए, बोले हर्षित जी मेरे को आप क्लासिक स्टेल्थ ब्लैक दे दीजिए. लड़कियां हंसने लगी, कस्टमर भी सोचे कि क्या हो गया. तो हम बोले सर आप खाली देखिए, इनको चुप हो जाने से फिर बताता हूँ. तो हम बोले सर आपका तो बॉल गेम ही चेंज हो गया कि आप मीटियोर से डायरेक्ट क्लासिक पे आ गए. तो बोले हाँ सर. तो हम बोला सर कैसे, आप तो एडवांटेज बता रहे थे मीटियोर का. बोले नहीं सर गाड़ी मेरे को अभी चाहिए. तो सर क्या है कि क्लासिक इज़ द बेस्ट. लेकिन कॉलेज गोअर्स में भी जैसे कॉन्टिनेंटल जीटी है, उसका राइडिंग पोजीशन के लिए, और बाकी सर एक्चुअली वैल्यू प्रोपोजिशन जो है रॉयल एनफील्ड का, दैट इज़ अनब्रेकेबल. सर आप कहीं भी देखेंगे इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1.37 गोज अप टू 4.5 सुपर मीटियोर. सर 1.37 में 350 सिलेंडर इंजन, और हम तो बोलते हैं सर हर 10,000 में मैक्सिमम 350 में सर आपका 3,500-4 हज़ार रुपया लगेगा. 3,500 रुपये मेंटेनेंस का, अगर आप सही से किए. चेन लूप सर, चेन मेंटेनेंस थोड़ा तो आप करेंगे तो उसका 1,000 रुपये. तो इट इज़ लाइक इतना बजट में आपको कोई बाइक सर फिर मिलेगा नहीं. दैट इज़. और जीटी है अभी सर, एडवेंचर टूरिंग का जो नया कॉन्सेप्ट आया है, लोग बाहर एडवेंचर नहीं कर रहे, लेकिन हाँ भाई उसमें पैनियर्स लगा लो, जो अफोर्ड कर पा रहे टॉप बॉक्स लगा लो. सिटी में ही चल रही है, लेकिन दैट इज़ द न्यू कॉन्सेप्ट. तो हिमालयन इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ पुश बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल बाइक्स. एंड बिलीव मी कि पीपल फ्रॉम अदर OEMs ऑल्सो, सर मेरे को शॉक ऑब्जॉर्वर दे दीजिए, मैं अपनी गाड़ी में मॉडिफाई करके लगवाऊंगा हिमालयन का. इट इज़ दैट कंफर्टेबल. क्लासिक इज़ द ब्रेड एंड बटर. नहीं हुआ तो ब्लैक सर, और कुछ कलर नहीं, मेरे को स्टेल्थ ब्लैक. Recently, I have seen Classic 650 Yeah. in chrome. Okay. That Twin looks black. visually amazing. सर दैट इज़ एक्चुअली, ये क्या हो रहा है सर, पहले के पन्ने फिर खुल रहे हैं. हाँ. द कलर्स दे वाज सो विजुअली अपीलिंग दैट टाइम. और अभी क्या है कि सर जो काम और होने लगा है, पिन स्ट्राइपिंग, ये सब जो हाथ से भी रॉयल एनफील्ड का पेंट होता है, तो उससे क्या है कि और भी सर कलर्स खिल के आने लगे. एंड ऑल दीज कलर, ट्विन ब्लैक, ये सब सर पुराने क्लासिक्स में थे, बुलेट में थे. वो विजुअली इट इज़ वन ऑफ द हेवीएस्ट बाइक, बट वो जब बाइक चलती है रास्ते पे, इफ़ यू ट्राई इट, इट इज़ वन ऑफ द मार्वल्स ऑफ एन इंजीनियरिंग. क्योंकि इतना भारी होके भी आप जब चलाएंगे, इट डज नॉट फील 250 किलोज. That is 250 kilo. 250 किलो, Oh my इट्स God. ऑलमोस्ट 244 किलोज. और आप तेल पूरा भरा लोगे तो 250. हाँ. What advice would you like to give to the first time buyers of Royal Enfield? सर सबसे पहले इट इज़ नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट, आई वुड अगेन से माइंडसेट. इट इज़ योर प्रेफरेंस. सबसे पहले तो ये समझना है कि भाई हमको गाड़ी चलानी क्या है, कौन चलाएगा, कोई पीछे बैठेगा, कि हमारा प्रेफरेंस कितना किलोमीटर्स का है. तो चीज़ क्या है कि सर अभी पेयर प्रेशर में आके लोग बोलते हैं, एंड इट इज़ अ फैक्ट, कि भाई बाजू वाले के पास ये है, एक मॉडल सर ऊपर लूँगा मैं,
वो 350 है तो मैं 450 लूँगा. बट दैट इज़ नॉट द थिंग सर. आज 15 मॉडल्स हैं एंड ऑल दीज 15 मॉडल्स हैव अ डिफरेंट राइडिंग पोजिशन. इंजन स्पेसिफिकेशन 4 हैं. एक 350, 440, 450, 650 ट्विन सिलेंडर. सब में राइडिंग पोजीशन अलग है, सबका वैल्यू प्रोपोजिशन अलग है और सबका ट्यूनिंग अलग है. तो हम इसीलिए हर बाइक की टेस्ट राइड भी रखे हैं कि आप उसको चलाएं. लोग बोलते हैं कि सर हम चला लिए. हम बोले सर आप चलाइए. एवरी डे देयर इज सम इंजीनियरिंग गोइंग ऑन. बिकॉज रॉयल एनफील्ड का एक चीज़ सबसे अच्छा क्या है कि फीडबैक. दे टेक द फीडबैक. वो फीडबैक इनकलकेट करेंगे. आपको कल की गाड़ी में और आज की गाड़ी में इंटरनली कुछ फ़र्क पड़ जाएगा, वो मेरे को सर्विस में पता चल जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा. लेकिन हाँ, इट इज़ डन फॉर द बेटरमेंट. तो चीज़ क्या है कि सर आप गाड़ी में बैठ के आप गाड़ी को चलाएंगे, यू विल कम टू नो कि what you are feeling comfortable, not what others will say. नहीं भाई वो तो मेरे को क्लासिक में देख के बोलेगा कि भाई तू सस्ता गाड़ी ले लिया या हंटर ले लिया. हम बोले भाई अगर मैं कंफर्टेबल हूँ हंटर पे या गरिल्ला पे, मैं वही लूँगा. मैं ये देखूँगा कि भाई मेरा क्या रिक्वायरमेंट है. और सर क्या है कि मेन आपके रिक्वायरमेंट पे, इट इज़ नॉट अबाउट मनी. फाइनेंस तो सर सभी कोई करा ले रहा है आजकल. 4-5 हज़ार रुपये में भी गाड़ी मिल जा रही है. हाँ. 5,000 में आपको हंटर मिल जा रहा है. क्लासिक 10,000 में. देयर आर फ्यू कस्टमर्स हु हैव टेकन इन दैट. तो हम बोले सर आपका जो रिक्वायरमेंट है उसमें लो. फिनेंस तो आपको कोई भी कर देगा सर. आप कितना EMI पे कर सकते हैं. इट इज़ ऑल डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपका परचेजिंग पावर क्या है, आपको कौन सी बाइक कितना कंफर्ट दे रही है. क्योंकि यू आर गोना राइड इट. और क्या है कि आप जितनी अच्छे से ये सब बाइक रखोगे, क्योंकि जितनी सीसी बढ़ेगी, बाइक का बोलते मेंटेनेंस बढ़ेगा, तभी बढ़ता है जब आप उसका केयर नहीं करते. यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ द बाइक्स. बाइक्स का इंजन कभी खुलेगा ही नहीं सर. और आरी में तो ये बोला जाता है आप चेन लूब कराएंगे और टाइमली सर्विस कराएंगे. चेन लूब ही करा लिए, चेन लुब्रिकेशन, तो सर गाड़ी का आधा प्रॉब्लम दूर है. So, what has been your most unforgettable ride so far? Most unforgettable ride, okay, it was in 2024. हमने प्लान किया कि वाटरफॉल जाना है, डाबरकोल. देवझर के जस्ट पहले 5 किलोमीटर पहले हिडन वाटरफॉल बोलते हैं डाबरकोल में. तो हम निकल पड़े. हम जैसे राइड ग्रुप में डाल देते हैं कि भाई अगर स्विमिंग करना है तो उसके लिए कॉस्ट्यूम, बीच में जाना है या कहीं है, तो वी एक्चुअली मेंशन इट. तो उसमें हमने मेंशन किया था. इट वाज अराउंड 15-20 राइडर्स. सबसे पहले तो हम थोड़ा रीरूट कर लिए कि भाई थोड़ा जंगल हो के अंदर से गए तो हमें हाथी दिखा पहले. अच्छा. और हाथी दिखा तो कुछ डर गए, बोले हम तो जाएंगे नहीं. हम डाबरकोल बस पहुँचे ही नहीं थे. बोले सर नहीं जा पाएंगे, हम वापस जा रहे हैं. एक लड़का तो वापस भी चला गया, बोलता मैं घर जा रहा हूँ, मेरे को तो बुखार हो गया. लिटरली एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग. कुछ का डर भी लग रहा था लेकिन हंसने लगे. बोले तू जा रहा है. वो गया, वो चला गया जीटी लेके. तो बाकी जितने थे, हाथी भी दिखा लेकिन कामली हमने निकल के डाबरकोल पहुँचे. देन वी ट्रैक्ड अराउंड फॉर लाइक से 1-1.5 किलोमीटर ऊपर पूरा चढ़ के एकदम टॉप ऑफ द फॉल. बोले नहाना है. अब फिर उसके बाद लोग बोल रहे हैं कि सर हमने तो कपड़े नहीं लाए. कुछ बोले कपड़े नहीं लाए. 10 जन ने लाए थे. 10 जन तो कूद गए, बाकी बचे 4-5 जन. और मैं क्यों बता रहा हूँ ये इंसिडेंट, क्योंकि उसमें से नाम तो नहीं लूँगा उनका, लेकिन ही इज़ होल्डिंग अ वेरी गुड पोस्ट इन वन ऑफ द यूनियन बैंक्स में. सीनियर मैनेजर या सीनियर VP कुछ हैं. तो वो हमारे राइड ग्रुप के आसाम के हैं. वो हम भी उन्हें एक इंडिपेंडेंस डे राइड पे मिले थे. तो वैसे करके 3-4 लोग थे, 5 लोग थे. हम आधा घंटा हो गया, हम मस्ती कर रहे हैं. ड्रोन भी था उस टाइम. एक राइडर ने ड्रोन लेके गया था. यू कैन सी इट ऑन माई इंस्टाग्राम, जय बाबा के इंस्टाग्राम पे. यू विल सी इट्स वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोज़. सर वो देख के अगर आपको एक गूज बम्प्स नहीं आ जाए तो मेरे को बताना, मैं शेयर करूँगा आपको. उसमें सर उन्होंने कहा सर अब वेट नहीं हो रहा है,
आपके पास हैंड टावल है? हम बोला हाँ फेस टावल है मेरे पास, मैं तो कैरी करता हूँ एक्चुअली क्या है कि कुछ लोगों में आदत डलवा दी कि भाई गेयर ये सब कैरी हाँ। करना है, आप एक्स्ट्रा ORS कैरी करो, एक मेडिकल किट कैरी करो, कुछ टूल किट है वो कैरी करते हैं, टॉप बॉक्स में डाल लेते हैं। तो सर फेस टावल है। तो बोले सर हम सब 5 जंप कर रहे हैं, और अंडर गारमेंट में उन्होंने जंप कर गए, वो फोटो अभी भी है। तो दैट वाज एन एक्सपीरियंस। हमने बोला कि भाई फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको बोलते हैं, ये लोग नहीं चाह रहे थे और इनको हो रहा था। 4-5 लोग ने मेरा फेस टावल यूज़ किया, नया फेस टावल था। हम बोले सर आपको टेंशन, बोले सर हम मैनेज कर लेंगे, आप खाली दो। कुछ नहीं था उनके पास, खाली कपड़ा जो पहन के वो। तो वो आज भी ऐसा किस्सा है, आपने एक पॉइंट को हिट कर दिया मेरे। वो हर न्यू राइडर को हम कोई ना कोई सुना ही देगा वो किस्सा, क्योंकि जो 15 गए थे कोई ना कोई उसको सुना ही देता है या वीडियो दिखा देता है। तो इट हैज़ बीन द मोस्ट मेमोरेबल, क्योंकि आज इतने बड़े बड़े पोस्ट के लोग को भी, मैं इसीलिए पोस्ट बोला क्योंकि कोई बिलीव नहीं करेगा कि भाई ये आदमी भी ऐसा एडवेंचर किया है। हाँ भाई स्ट्रिक्ट है, वो बोलते हैं ना कि गई क्लास का टीचर स्ट्रिक्ट है, ये नहीं कर सकता है, लेकिन सर ये एक ब्रदरहुड ही है। हम दिखा सकते हैं और हम करा सकते हैं कि भाई हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि वी आर डूइंग दिस। हम तो बस नहाने कूदे थे, और ये एक्चुअली ऐसा हो गया कि वो 5 जन को उनको लगा कि भाई हमको तो जाना चाहिए। दिस हैज़ बीन मोस्ट मेमोरेबल। और ये हमको लगता है मेरे ग्रुप में इतने लोग हैं, सबको पता होगी भाई हाँ सर ने या हमारे ग्रुप के राइडर ने हमको एक बार तो बताया। How riding has helped you make lifelong friends? बिलीविंग इन वन थिंग कि स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स आज सब जॉब में चले जाते हैं। आज एक से, चाहे मेरा एक बेस्ट फ्रेंड से कोई मैं कांटेक्ट में होऊंगा, लेकिन व्हाट्सएप पे कॉलेज, आजकल व्हाट्सएप होने के बाद कॉलेज ग्रुप्स बन गए कि भाई स्कूल का ग्रुप्स, कॉलेज ग्रुप्स। बट थिंग इज दैट वेयर द प्रॉब्लम इज अराइजिंग कि भाई हम वो व्हाट्सएप तक ही रह गए। आज एल्यूमिनाई मीट हो रहा है मेरा, मैं बेंगलोर में पढ़ा हूँ या मैं चेन्नई में पढ़ा हूँ, मैं भुवनेश्वर में पढ़ा हूँ, तो भी मैं नहीं जा पा रहा हूँ। और राइड ग्रुप में ऐसा क्या है कि पीपल, लाइक माइंडेड पीपल आर कमिंग इन, बिकॉज देखिए क्या है कि इफ़ योर माइंड सेट डज नॉट मैच, आप राइड नहीं करेंगे मेरे साथ। सर वो वाइब मैच करना चाहिए, दैट इज़ द वाइब विच शुड मैच, दैट डिसिप्लिन शुड मैच। तो आज वो लाइक माइंडेड पीपल आर गेटिंग टुगेदर। आज मैंने जैसे मैं बोलता हूँ कुछ राइडर्स आके शोरूम भी संभाल लेते हैं। सर यू कम डाउन टू माई शोरूम हो, वर्कशॉप हो, राइड्स हो, सब कुछ कंडक्ट कर देते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर लाइक माइंडेड एंड दे नो कि भाई यही लोग जुड़ेंगे। तो सर दीज पीपल, आज रात को 12 बजे भी बात हो रहा है, 2 बजे भी हो रहा है, आप खाली एक कॉल उठा के करिए। दीज पीपल, मेरा बेस्ट फ्रेंड एक होंगे कॉलेज और एक स्कूल के, लेकिन आज इन्होंने जो जगह मेरे दिल में और मेरे घर पे फैमिली में बना लिया है, इट्स ऑल फैमिली। तो दिस रिलेशनशिप, ये जो बाइकिंग ब्रदरहुड बोलते हैं, देयर इज़ नथिंग बेटर देन दैट, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट मैनी एक्सपीरियंस कि जहाँ क्या है कि यही मेरे साथ थे, देयर वाज नो वन एल्स। मेरी फैमिली है, लेकिन राइडिंग के टाइम तो फैमिली भी नहीं रहती, दीज आर माई फैमिली। और आज 3 साल में इनका जो ब्रदरहुड है जो हमने देखा है, लोग जो बोलते हैं बाइकिंग ब्रदरहुड, इट इज़ देयर। क्योंकि लाइक माइंडेड पीपल ही आपके लाइफ टाइम दोस्त रह सकते हैं। स्कूल वाले से तो आज सर 25 साल हो गया स्कूल छोड़े, आज मिले ही नहीं है। आज उनको व्हाट्सएप पे करते तो हाँ हाय गुड नाइट या कुछ काम हुआ तो वो बोल दिया, लेकिन वो भी नहीं होता है। बट दीज पीपल कभी भी आ गए, क्रैश इन टू माई होम, क्रैश इन टू द शोरूम, कहीं और क्रैश कर लिए, भाई खाली वही सब बातें चल रही है, वही हो रहा है। हाँ, लेकिन ये क्या है कि दे आर रेडी टू स्टैंड वेर एवर यू आर फीलिंग अ वर्ड एनी टाइम। What's the most motorcycle situation, only situation that you have faced while riding? सर गेयर प्रमोट कर रहे हैं, लाइक वी आर प्रमोटिंग गेयर्स राइट नाउ since the beginning. People have helmet wherever they go. If we are 25 riders, 30 riders, they'll put the helmets on the shelf. अरे भाई
5 लाख रुपया का शेल्फ हो गया भाई ये। पहले तो खोजेंगे जगह कहाँ है, अगर जगह मिला, अरे 5 लाख रुपया का, 2 लाख 2.5 लाख रुपया का हेलमेट का शेल्फ। अब आई बात मेन जैकेट की, जैकेट कहाँ रखें। तो क्या है कि ये जो सिचुएशन है, अब अभी हमें एक राइड किए थे, व्हाट हैड हैपेंड कि वी वर 25 राइडर्स, वी वेंट फॉर ब्रेकफास्ट राइड, वी हैड अ bath in the beach, we came back for a breakfast in a hotel. तो few of us had top boxes, just 3 or 4, बाकी 20-25 पूछ रहे हैं सर रखेंगे कहाँ। तो हम बोले सर अपने साथ ले चलिए। सर साथ बैठ के तो खा नहीं पाएंगे, कहाँ रखेंगे इतना भारी, एंड ये जैकेट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 2.5 किलोज 3 किलोज, उससे ज़्यादा भी। तो फिर होटल वाले को बोले कि सर, होटल वाला खुद देख के बोला कि सर यहाँ मत रखिए, रेस्टोरेंट फुल हो जाएगा, आप एक रूम देता हूँ, आप उसमें रख दीजिए। वो रूम भर गया। बोले सर एक और रूम देना पड़ेगा। बोले नहीं सर आपको बड़ा रूम देता हूँ। सारी जगह मैंने ऐसा रहता है, क्योंकि आज कॉस्टली चीज़, आज हेलमेट से भी ज़्यादा इंटरकॉम्स हो गए। हाँ, दैट इज़ द मेन मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड व्हाट वी बिलीव। हम लोग को ये बोलते हैं कि आप धीरे धीरे खरीदो, आप मेन चीज़ खरीदो, उसके बाद क्या है, कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइड में। तो चीज़ क्या है कि आजकल 30-40 हज़ार और 60 हज़ार तक का सीना का आ गया है। जैसे ब्लू आर्मर का तो 20-25 हज़ार का है, लेकिन सीना का 60-60 हज़ार। हेलमेट से ज़्यादा अब उसको कहाँ रखें। तो इसीलिए सर अच्छा जगह चाहिए। कुछ लोग तो 25,000 रुपये का टॉप बॉक्स, 20,000 रुपये का है एक्चुअली, टॉप बॉक्स भी लगा रहे हैं कि सर मेरा हेलमेट तो उसी में ही रहेगा। नहीं तो हेलमेट 30,000 का, बाकी सीना सर 60,000 का, 1 लाख रुपये का तो मेरा हो गया। तो दैट इज़ बिकमिंग एन इशू। बट लेकिन क्या है कि आजकल टॉप बॉक्स का जो फैशन है, पीपल आर बाइंग टॉप बॉक्सेस, यूटिलिटी है एक्चुअली, फैशन नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन यूटिलिटी है। लेकिन तो भी क्या है, सब अभी भी क्या है कि अफोर्डेबिलिटी का भी बात आ जाता है। इट इज़ नॉट एन अफोर्डेबल थिंग। तो हाँ, वो चैलेंजेस रहते हैं हर राइड पे कि भाई हर राइड पे बैकअप व्हीकल तो जा नहीं सकता है। नहीं तो बैकअप व्हीकल में डाल दिया। लंबे राइड्स होते तो कुछ बैकअप व्हीकल जाता है अपना 60-70, जैसे वन राइड हुआ था और राइडर्स रॉन्डेवू हुआ था रॉयल एनफील्ड का। ये चैलेंज रहता है। और बाकी कुछ लोग पैनियर्स भी लगा रखे हैं, तो उसमें भी रखते हैं। लेकिन क्या है कि आजकल इतना गैस बढ़ गया है तो पैनियर्स टॉप बॉक्स में भी नहीं हटते। अब सबसे टेंशन होता है हेलमेट कहाँ रखे। सर हेलमेट का तो सबसे बड़ा टेंशन है, क्योंकि एक बार गिरा तो सब चीज़ टूट जाता है। और वाइज़र टूटने से, वाइज़र नहीं मिल रहा है सर, वाइज़र ही खुद, वाइज़र और पिन लॉक अगर टूट गया वो 5-7 हज़ार का है। बोले सर एक बार गिरा गया, तो वो अलग टेंशन है। अपने आप से ज़्यादा उसका ज़्यादा केयर है। What was the most challenging ride that you had till now? Sir, challenging as such, I would say सबसे चैलेंजिंग राइड सर ऐसा तो नहीं, सब राइड चैलेंजिंग रहे हैं, क्योंकि वेदर और राइडिंग कंडीशंस और बाकी सर रोड कंडीशंस, ये चैलेंजेस हर राइड पे हैं। क्योंकि सर आज हम मंदारमनी ओवरनाइट किए थे, ऑलमोस्ट 30 पीपल, जस्ट 3-4 मंथ्स बैक। उसमें सर यहाँ से निकले पूरा धूप था, बीच में सर भयंकर बारिश, भद्रक बालासोर में सर मैंने कुछ नहीं दिख रहा है। एक लड़का तो क्या है, गाड़ी साइड में स्टैंड किया, वो पिछला गाड़ी भी उसके ऊपर गिर गया। तो मैंने सर क्या है कि वी हैव फेस्ड ऑल द वेदर, और फिर मंदारमनी जाए, और उसके बाद जो धूप हुआ मंदारमनी बालासोर के बीच में, ऐसा लगा कि सब कुछ सूख गया, सब गेयर सूख गए सर। मैंने अंडर गारमेंट तक भीज गया था। बोले कि सूखेगा कैसे, थोड़ा सा आगे गए, बोले अब चलाना पड़ेगा, अब तो उपाय नहीं है, कुछ भी अनपैक कर लेंगे तो सब खराब हो जाएगा। इट वॉज अ 300 odd किलोमीटर राइड। तो हम बोले आगे चलते हैं, कहीं खाना भी खाएंगे। वी हैड प्लान्ड, क्योंकि देखिए प्लानिंग चाहिए, तो प्लान्ड ऑलरेडी था लंच कहाँ करना है। तो हम गए वहाँ तक पहुँचे, उसके पहले सब बोले कि सर वी आर ड्राई, वी आर नॉट हाई बट वी आर ड्राई। तो सब ड्राई हो गए। मैंने वेदर चेंजेस इतना ज़्यादा होता है, रोड कंडीशंस, मेन चैलेंजेस तो यही रहता है। क्योंकि आपको एंड्योरेंस जो है, कभी कोई को एस्थमा का प्रॉब्लम है, कोई को कुछ है, तो क्या है कि आप राइट अमाउंट ऑफ गेयर्स पहने,
माने आज क्या है कि सर लोग नॉर्मल टी शर्ट्स पहन ले रहे हैं, जर्सीज नहीं पहन रहे हैं, क्योंकि आपको ब्रीदेबल चीज़ चाहिए जो ड्राई फिट हो. लोग टी शर्ट्स पहन ले रहे हैं, उसके ऊपर जैकेट, बट दैट इज़ नॉट राइट, बिकॉज वेन यू स्वेट, सर क्या है कि आज पसीना तो अंदर ही रह जा रहा है, जो पर्स्पिरेशन हो रहा है कहाँ जा रहा है, आपका टी शर्ट तो सोक नहीं कर सकता है, आपको अनकंफर्टेबल फील होने लग जाएगा. आपको एस्थमा नहीं भी है तो आपको हफनी आने लगेगी कि भाई अब पसीना आ रहा है, मेरे को कुछ हो रहा है, पानी भी कम पड़ रहा है, पानी पीने से भी आई एम फीलिंग डिजी. तो सर चीज़ क्या है कि बेस लेयर्स होते हैं, उसके ऊपर जैकेट पहनेंगे, बैल्क्लावा होता है कि भाई आपका हेलमेट स्मेल नहीं करे और आपका प्रॉपर स्वेट अब्जॉर्ब हो. तो सर चीज़ क्या है कि एवरीथिंग हैज़ राइट अमाउंट, मैंने हर गेयर का एक रूल है कि भाई इसको इसके साथ पहना जाता है. तो क्या है कि सर तभी आप हर टेरेन को, हर वेदर कंडीशंस को आप काउंटर कर सकते हैं. रेन लाइनर्स है, जूते से लेके, जूते को भी कवर कर लेता है टू द हेड, रेन लाइनर्स यू कवर, आजकल हर जैकेट के साथ आता है. तो क्या है कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग. आज हेल स्टॉर्म्स हुआ, कुछ हुआ, वाइज़र भी हम एक्स्ट्रा रख के जाते हैं, स्पेयर्स लॉन्ग राइड के लिए जैसे हम स्पेयर्स भी एक्स्ट्रा लेके जाते हैं. चैलेंजिंग, सबसे चैलेंजिंग तो वेदर कंडीशन और रोड कंडीशंस ही है. First of all, we want to know what is your personal favorite bike that you ride every day. It was Interceptor 650, बट थोड़ा सा क्या है कि अब लॉन्ग राइड्स भी कुछ कुछ होने लगे हैं, तो हिमालयन इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल बाइक फॉर नाउ. या आई हैव डन ऑलमोस्ट लाइक 20-30 odd thousand kilometers on Himalayan itself. Himalayan? Yeah. Wow. Because the softness of the suspension is very good, the comfort is very high, but It is like cruiser like. adventure tourer है सर. क्या है हाँ. कि it can go to different terrains. अब सिटी में राइड करने के लिए हिमालयन इज अ लिटिल डिफिकल्ट, बिकॉज ट्रैफिक जो बढ़ गया है, यू नीड टू एक्चुअली कीप चेंजिंग गेयर्स. तो क्या है कि सिटी के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा, बट या वी डू इट इन द सिटी. अब आदत पड़ गया है तो अब दैट्स कंफर्ट के लिए. इंटरसेप्टर इज़ अ वेरी गुड बाइक. थोड़ा विंड ब्लास्ट होता है ज़रूर, बट दैट इज़ अ मशीन. ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि भाई एकदम जीटी की तरह सेम इंजन है लेकिन ट्यून्ड अलग है, तो फटाक से पिकअप ले लिया, छोड़ दिया, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स. बट ऑफ लेटली अब 20-30 हज़ार किलोमीटर करने के बाद हिमालयन इज़ वेरी गुड. My daily driver. What's the funniest thing that has happened during the ride? Like a wrong turn or Yeah. food or रॉन्ग टर्न हुआ है. 2023 में हमने रॉयल एनफील्ड का मार्की राइड था, वाइजैक का रीजनल राइड था, तो आर्को वैली राइड बोलते हैं उसको, 2 नाइट्स 3 डेज़ का. क्या हुआ कि फर्स्ट तो हम यहाँ से गए, तरह तरह के राइडर्स, अब खाली जय बाबा के तो नहीं थे, रॉयल एनफील्ड के सब तरफ से थे. सबसे पहले तो वो एंड्योरेंस की भाई लोग कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि देयर वर मेनी फर्स्ट टाइम राइडर्स. लोग लेके गए, हमको उस दिन लगा 8 बजे निकले थे, हम पहुँचे रात को 10:30 बजे. दैट इज़ एन इम्पॉसिबल लाइक ऑफ टास्क. लेकिन हाँ, बारिश हुआ, ये हुआ, क्रिएटिव टीम थी, सब थे करके, न्यू राइडर्स थे, उनको ले जाना सर इट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज. सेकेंड डे क्या हुआ कि कुछ लोग बोले सर हमें आपका लगेज वैन में ले चलिए. हमारे राइडर्स नहीं, दूसरे डीलरशिप के राइडर्स से बोले हमें सर लगेज वैन में ले जाइए, हमें डर लग रहा है वहाँ पहाड़ पे चलाने को. ठीक है, बोले नहीं सर आप नहीं जाओगे. तो उन्होंने मना कर दिया, बोले कि सर वी आर नॉट गोइंग, वील स्टे हियर इन द होटल. बेव्यू में रहे थे, जो एकदम वाइजैक में बहुत प्रीमियम है. हम निकल गए. अब एक्चुअली क्या होता है, एक राइड में यू हैव अ लीड, यू हैव मार्शल्स जो मार्शलिंग करते पूरा ग्रुप को देखते हैं आगे से पीछे, ऑलमोस्ट वी हैव एंड अ स्वीप. तो क्या है कि वी फॉलो दिस एवरी टाइम, क्योंकि क्या है कि इतना अनरूली ट्रैफिक है, तरह तरह के जंक्शंस हैं. तो उसमें क्या हुआ कि उस राइड में जो कंपनी के स्वीप थे, स्वीप हैज़ टू वेट. और कोई एक्चुअली चीज़ क्या है कि कोई लीड के सामने नहीं जा सकता है. मार्शल को अगर कुछ हुआ तो मार्शल को इन्फॉर्म करेगा, नहीं तो स्वीप हैज़ टू स्टॉप. अगर मैं सेकेंड लास्ट हूँ, मेरे लिए उसको स्टॉप करना ही है, वेदर इट बी एनीथिंग, आई एम टेकिंग अ कॉल और एनीथिंग. तो क्या है कि दैट इज़ द वे अ राइड इज़. क्योंकि क्या है कि नहीं तो क्या है कि सब आदमी बिखर गए और बिफर जाएंगे, फिर मिलना मुश्किल है.
और उसका मूड वहीं चेंज हो जाएगा कि मैं तो अलग हो गया, ये चले गए 15 किलोमीटर आगे, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो हमें छोड़ दिया, हम 3 जन थे, 3 बाइक पे। हमने फ़ोन कॉल के लिए उठाया, वो स्वीप हमारे आगे निकल गए। अब क्या है, राजापेटिया करके एक जगह है, हाईवे के नीचे से यू टर्न लेके अरकू वैली तरफ। तो हमने तो हाईवे पकड़ा, क्योंकि हाईवे से एक सर्विस लेन लेना पड़ता, और उस हाईवे में अभी का नहीं पता, राजापेटिया में जो एक सर्विस लेन था वहाँ हम नहीं उतरे, पता भी नहीं, मैप दिखा रहे घुमा के, और गूगल मैप दिखाया पूरा घुमा के, हम 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर आगे पहुँच गए। कोई बाई लेन्स नहीं, कुछ नहीं, हाईवे खाली है, 3 लेन्स ईच है। और जैसे बोलते हैं अहमदाबाद बॉम्बे वाला में कि भाई 50-60 किलोमीटर के बाद आता है, 100 किलोमीटर के बाद आता है। अब हम पहुँचे 30-35 किलोमीटर, कोई नहीं दिख रहा। हम लोग बोले सर आप लोग है कहाँ? वो हमको फ़ोन किए, तो सर आप लोग है कहाँ? जब लोकेशन भेजे, नेटवर्क था नहीं अब उस हाईवे पे, जब हम लोकेशन भेजे, बोले सर आप लोग 40 किलोमीटर दूर हैं। तो हम बोले सर कोई बताए नहीं, स्वीप भी नहीं था, अब आप लोग को कांटेक्ट कैसे करते? अचानक से आप लोग सब इतना तेज़ी से निकल गए। और जब लोकेशन भेजा, हम बोले भाई ये तो अभी और 1 घंटा आपको रुकना होगा सर, हम तो ये 35 किलोमीटर वापस जाएंगे। क्या किया उस दिन, जो एक्सपीरियंस हुआ, अब कोई बाईवे नहीं है, सर्विस लेन। अब सर्विस लेन क्या करें, कुछ दूर आए, देखे एक रास्ता निकल रहा है साइड से, बट आप बिलीव नहीं करेंगे, इट वॉज अ डिवाइडर वॉज ऑलमोस्ट 3 फीट हाई। मैंने एक्चुअली नीचे और उतर के था, गाड़ी रोके, बोले कोई तो है नहीं, क्या करें, उतना दूर जाएंगे तो अरकू वैली, माने क्या है कि अगर शाम हो गया तो गए। अब उसके बाद लगा कि भाई आज अरकू वैली भी मिस होगा, जिसके लिए आए हैं, बैम्बू बिरयानी इतना फेमस है। बोले यार सालों से सोच रहे हैं, आज आने का मौका मिला, तो अब यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। हमने देखा कि भाई सर लोग, अगर ये सर्विस लेन मिल गया, लेकिन वो सर्विस लेन कनेक्टेड नहीं, वो साइड से जा रहे हैं, और मैंने ऑलमोस्ट 3-4 फीट का वो डिवाइडर है। हमने बोला सर कुछ आइडिया आया? हम बोला मैं सोच रहा हूँ जो आप भी सोच रहे हैं। तो बोला हाँ सर। तो हम बोला ईंटा जुगाड़ करिए, ब्रिक्स। सर आसपास से लाके 5-7-10 मिनट लगा ब्रिक्स जुगाड़ के, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी लिफ्टेड आवर मीटियोर राइड था। अच्छा, हमने 650 350। अच्छा, सर 650 को उठा लेंगे तो हम आज यहाँ नहीं रहते। और सर उसके बाद जो हमने बाइक उठाया, तीनों बाइक उठा के रास्ते के उस तरफ रखा। 650 वाले जो हमारे दोस्त थे वो नहीं गए थे, वो होटल में थे, वो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की। हम 3 दोस्त 350 में गए। उस दिन हमको लगा कि भाई जो लोग बोलते भारी है, चलाने में तो भारी नहीं है भाई, उठाने में तो जान निकाल दिए। बोले खाली बैम्बू बिरयानी के लिए हम तो ये कर रहे हैं। फिर उठा के उस बाइक को रखा, एंड वी ऑलमोस्ट मैंने 20-25 किलोमीटर हमारा लगता हमको कम हो गया। हाँ, बस वो रोड पकड़ ही लिए। लेकिन हाँ, वो जो उठाने में दम लगा, 15 मिनट हम लोग साइड में बैठ गए रोड के, कि भाई 200 किलो उठाए हैं 3 बार, 3 जन मिल के, आज हो गया। नहीं तो शाम तक हम घूमते ही रहते, 1-1.5 घंटा। वो लोग भी वेट नहीं करते सर, सबका टाइम वेस्ट हो रहा था। 30-35 राइडर थे। तब ये भी इम्पोर्टेंस है, तब हमने बोला उनको कि सर देखिए क्या है कि हर चीज़ में एक लर्निंग है, कि सर देखिए स्वीप का काम अपना है, सबका काम अपना अपना है, मार्शल्स का काम, लेकिन सर आपका स्वीप आपका काम नहीं किया तो हम भी फंस गए, आपका टाइम भी खराब हुआ। बट दैट डे वी एन्जॉयड। आफ्टर दैट वो एक्सपीरियंस रह ही गया। वो रॉन्ग टर्न आज तक भी याद रहेगा कि भाई गूगल मैप, अगर कहीं लग रहा है गूगल मैप्स गलत है तो भैया बंद करो उसको, पहले बंद करो। All right. So, describe your riding personality in 3 words. Calm, resilient, committed. Committed. Lovely. So, if your biker journey was a movie, what would the title be? 2 ऑप्शन देंगे तो बताऊंगा। हाँ, obviously 2 options. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, And another one? माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। Wow, lovely. क्योंकि सर अब ये क्वेश्चन पूछे तो हमको लगता है गूज़बम्स हो जा रहा है। बिकॉज यू मे कम इन जॉइन मी एनी टाइम आवर राइड्स,
आपको लगेगा कि लोगों से मिल के एक वाइब आता है ना, यू विल फील लाइक इट इज़ एक्चुअली आपका होराइजन बढ़ रहा है, आपके दोस्त बढ़ रहे हैं, आपका फैमिली बढ़ रहा है, इट इज़ लाइक अ फैमिली। और क्या है कि बहुत तरीके से लोग मिल रहे हैं, उनका होराइजन जो इतना बड़ा हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग एडवांटेज। क्योंकि ये फैमिली की तरह आज ग्रुप है, सब कुछ है, ब्रदरहुड है, लेकिन आज ये फैमिली में, आज फैमिली जो एक चीज़ है, इट होल्ड अ वेरी गुड, माने वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, सबसे इम्पोर्टेंट वही है। सो वी आर ट्राइंग कि भाई क्रिएट नहीं, वो अपने आप ही बन रहा है, कि जब आप फैमिली जो बन रहा है, इट ऑल स्टैंड्स बाय दैट। All right. Coming to the rapid fire round. यस So, classic 350 और Himalayan? सर ये क्वेश्चन क्यों पूछे? ये क्वेश्चन नहीं पूछते तो अच्छा होता, बट एट द मोमेंट इट्स हिमालयन। Himalayan. Helmet color, black और bright? अभी मूड स्विंग हो गया है, एक्चुअली 2 साल से ब्लैक था, मैट ब्लैक, लेकिन इट्स गोइंग टू ब्राइट Bright. because in my group maybe I bought a new jacket just a while ago, a few weeks ago, सिंपल सा जैकेट खरीदा था। तो बोले सर आपने येलो छोड़ के क्यों खरीदा, आपका येलो ही दिखता है और आप स्वीप में रहते हो, स्वीप से जस्ट एक पहले। तो बोले सर ये चेंज करने से नहीं होगा। तो मैं भी सोचा कि भाई अब ब्राइट में ही जाऊंगा, हेलमेट भी ब्राइट चाहिए। अच्छा, one upgrade every Royal Enfield must have. You mean the bikers or Bike, the bike. the bike? टॉप बॉक्स माउंट करने का रियर रैक, बिकॉज दैट इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी आप कर सकते हैं, फ्यू बाइक्स एक्चुअली डोंट अलाउ, लेकिन अभी कंपनी कर रही है, कंपनी इज वर्किंग एंड फ्यू Guerrilla also भी हैज गॉट। Guerrilla have the dedicated rack system, no? नहीं था, अभी नहीं, कंपनी ने अभी उसको निकाला है। जी, कंपनी इज कमिंग अप विद दैट एंड कुछ लोग बोलेंगे हल्का कर दो भाई, नहीं मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो जो क्वालिटी है वो इसी क्वालिटी के लिए हमें प्यार है कि भाई गाड़ी जब चलती है तो यहाँ वहाँ हिलना नहीं कि भाई कोई हवा का झोंका आके हिला दिया उसको, क्योंकि उठाएगा भी वही आदमी जो उसको चला सकता है। नहीं तो सर उठाने के लिए ही आदमी नहीं, और मिडिल स्टैंड में डालने के लिए तो सर मेरे को लगता है 80% 90% लोग नहीं डाल सकते, क्योंकि देयर इज अ ट्रिक फॉर एवरीथिंग। आज उन्होंने बाइक बनाया है तो इट इज ह्यूमन मेड ओनली, एवरीथिंग हैज अ, माने उसका भी एक कल्चर है कि भाई बाइक को मिडिल स्टैंड में कैसे डालना है, गाड़ी को स्टैंड से उठाना कैसे है, चलाना कैसे। लोग बोलते हैं अब, मैंने दूसरे ब्रांड का बोलूँगा नहीं, लेकिन एक ब्रांड है यू माइट ऐसे बोलते हैं, उसमें रियर भी आता है। वो बोले भाई ये रियर के लिए थोड़ी है बाइक कि रियर स्विच डाल दिया और गियर मार के कर दिया रियर। बोले सर दरकार है रॉयल एनफील्ड में। हम बोले सर फिर तो आप वही बाइक चला लो जिसमें रियर है, फिर इसको चलाने का क्या फ़ायदा है। That's it. It was lovely talking you. Thank you so much. Your stories were definitely inspiring, and people will definitely go for gears after listening to you. To know more about such interesting conversation, stay tuned to Orissa Post Live for more such updates. Thank you, Harshit.